To have a healthy and fruitful discussion on the subject, we have with us two eminent scholars, Dr. Usman Chauhan, Director, Center for Aerospace and Security Studies, and Dr. Shujat Farooq, Head, Pied School of Economics, Islamabad. We are also joined by the Executive Director, Center for Law and Security, Mr. Rahman Azhar. Keeping the current turmoil in consideration, we formally commence the session. I would like to begin the discussion from Dr. Usman Chauhan. Sir, given the current indicators, the current economic indicators, how important is the IMF deal for Pakistan? Will economic independence be possible in Pakistan's case in the near future? Sir. Assalamu alaikum, Rahman Saab, Shujat Saab, Asfandiar, and everybody at CLS. I think it's the critical question right now in our economic paradigm whether we can secure this the next tranche of the extended fund facility, a program that has continued since 2018-19. The ninth review, as you're well aware, happened about and now at the end of it, there was a few stipulations that the government had to meet. By its reckoning, it has made significant progress and it met more than halfway the IMF demands. And yet there has been a kind of radio silence recently. The radio silence is that we aren't aware of whether this happens or doesn't happen, and whether we have secured enough of the stipulations to pursue the next tranche. Therefore, people are asking your question, which is, can we proceed without the IMF and secure that funding? In my personal judgment, I think that it is necessary to unlocking various other sources of financing. It is not the tranche itself that is so important, but the fact that we have to unlock other sources of funding to meet our immediate financing needs over the next 24 months. One thing that comes in is that the IMF is itself making its own release of the tranche contingent upon assurances from friendly countries. And those countries themselves are signaling that actually significant reform has to take place in order for them to feel satisfied that it's financing. And they're also encouraging investing in our assets rather than just extending credit. Therefore, it seems that the buck has to stop with us this time around, because other countries are saying that this is a very good opportunity to take the difficult decisions, and therefore we should take them. However, with the current political climate, it seems that there are far clarity on who is to take these decisions, when and why. And therefore, time is running increasingly short. And therefore, to answer your question summarily, I do believe that the IMF tranche is important, not just for itself, the amount isn't important, but because it unlocks other sources of funding. Dr. Usman, please explain one thing for people like me who do not understand the intricacies. पहले IMF कह रहा था कि आपको ये चीजें आपने पूरी करनी है, एंड वी नो दैट गवर्नमेंट हैज टेकन अ लॉट ऑफ डिसीजंस, और हमने बहुत सारी जो शराइत और वो फिर जब लेजिस्लेशन भी हो गई तो कहा गया कि वो पूरी होगी. But now IMF is saying that there should also be a sort of NOC coming from these countries as well, or assurance coming from these countries. So Pakistan will have to fulfill their conditions. This is what you are saying, या पाकिस्तान को वहां पर जो है वो assurances का जिनका हमने पहले सुना था कि what does IMF want? किस तरह की assurance जो है वो उधर से जो है वो उनको जो है वो चाहिए? The IMF is essentially asking that you have enough additional financing secured from these other countries, that they park some money with you. Some of these countries are more forthcoming than others. इन ममालिक में चंद ऐसे शुमार होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, आप पहले बंदा बने और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है. And that sort of बंदा बनी जो शराइत वो आयद करना चाह रहे हैं, वो थोड़ी सी मुश्किल भी हैं, because it's not clear to me personally what they demand, what they are seeking, and how much reform would be enough for them. अच्छा शुजा साहब, how do you see this situation? देखिए, क्या पाकिस्तान में, इसमें अब दो चीजें हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ. नंबर वन इज कि वी हैव बीन सेइंग कि IMF प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक के साथ जो मामला आते हैं, दे आर मोर ऑफ ए political question rather than actually an economic or financial situation.
और वहां से जो अप्रूवल आती है इट इज ऑल्सो पॉलिटिकल एज वेल, नंबर वन। नंबर टू, विद दिस सिचुएशन, क्या पाकिस्तान ने या पाकिस्तान में जो लोग आईएमएफ के साथ डील कर रहे थे, निगोशिएट कर रहे थे एट डिफरेंट स्टेजेस, क्या उन्होंने फोर्स ही नहीं किया था कि आईएमएफ इज गोइंग टू से वन थिंग एंड देन आईएमएफ will come up with another demand and then there will be another demand? रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच। जो आपका पहला पॉइंट है पॉलिटिकल डायमेंशन, तो मेरे ख्याल से यस, देखें, आईएमएफ को अगर आप देखें या वर्ल्ड बैंक को देखें तो आपके ये बैंक हैं और बैंक के पीछे कंट्रीज हैं। आपके देखें इसके पीछे आपको G7 मिलेंगे, G20 मिलेंगे जिनकी अमाउंट है। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हिस्टोरिकली आपको ये लगेगा कि जब भी आपके पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे हैं तो आपको लोन की एक्सेस मिली है। और सम टाइम ऐसे भी एपिसोड्स आए हैं, फॉर एग्जांपल देखें कि जब आपको लोन की जरूरत नहीं थी तो यही बैंक आपके पीछे भाग रहे होते थे कि जी ये पैसे ले ले। फॉर एग्जांपल आप जिस तरह आप आईडीबी की आप देखें, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है एज कम्पेयर टू अदर, तो वो तो आपके लिए हमेशा पीछे पैसे लेके भाग रहा होता है क्योंकि इन्होंने अपने लोन को बेचना है। तो देखें इसमें एक जियो पोलिटिकल फैक्टर तो मस्ट एग्जिस्ट करता है कि और आपको भी पता है कि इस वक्त आपकी जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है आफ्टर इवेजन ऑफ यूएसए फ्रॉम अफगानिस्तान, कि शायद आपको इस वक्त उनकी जरूरत नहीं है और इकोनॉमिकली आप क्राइसिस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर पॉलिटिकल फैक्टर है। सेकंड, जो देखें उनकी कुछ कंडीशंस, वो कह रहे हैं कि आईएमएफ का जो पैसा होता है वो हमेशा आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए होता है। ये नहीं कि आपने ये जो 1.7 बिलियन डॉलर की बात हो रही है, ये 1.2 बिलियन की है कि आपने इस पैसे को यूज करना है, बेसिकली ये आपके रिजर्व में चला जाता है। और रिजर्व में जब आप जाता है तो ये होता है कि आपके रिजर्व जब बिल्ड होंगे तो आपके डिफॉल्ट के चांसेस कम होंगे। फॉर एग्जांपल इस वक्त आप देखें तो आपके पास हार्डली 1 महीने की भी इंपोर्ट को फाइनेंसिंग के पैसे नहीं है। आइडियली मिनिमल आपके पास 3 मंथ की इंपोर्ट जिसको कहते हैं उसको आपको फाइनेंस करने की जरूरत है। सो इस सिनेरियो के अंदर ये फैक्टर पॉलिटिकल भी बिल्कुल एग्जिस्ट करता है कि जिसके अंदर आप उसको जिसको कहते हैं। और सेकंड, शायद वो जो कह रहा है कि जी आप कुछ दोस्त मालिक से भी पैसा लें, उसकी रीजन एक है कि देखिए अगले 5-6 माह में आपने तकरीबन $7 बिलियन वापस करने हैं, ठीक है, इस फिस्कल ईयर के अंदर। और उससे आगे जाएं तो अगले 3 साल के अंदर आपने सर तकरीबन $100 बिलियन वापस करने हैं, ठीक है। तो कीपिंग इन व्यू, शायद ये उनको भी पता है कि $1.7 बिलियन इज नॉट सफिशिएंट कि जो आपकी नीड को फुलफिल कर रहा हो। तो आपको इस वक्त $5-6 बिलियन चाहिए। तो जाहिर है जब तक वो दोस्त मालिक की सपोर्ट नहीं आएगी, ये $1.7 बिलियन तो आपका जिसको कहते हैं ना वो बड़ा क्विकली वो रिपोर्ट हो जाएगा। तो यस, दोनों फैक्टर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं कि शायद हमने बहुत प्रीवियसली इसको राइट तौर पे निगोशिएट नहीं किया। और देखिए दूसरा ये होता है कि जो दोस्त मालिक होते हैं, पाकिस्तान का अगर आप लोन देखेंगे, उसकी कंपोजिशन देखेंगे, उसमें एक अच्छी चीज ये है कि आपका मोस्टली जो लोन है वो बाइलेटरल है। आपने सऊदी अरेबिया का देना होगा, आपने यूएई का देना है, यूएसए का देना है। मल्टीलेटरल लोन आपका कम है, जो पेरिस क्लब है या इस तरह के जो इदारे हैं। लेकिन देखिए जो बाइलेटरल जो इदारे होते हैं, ये भी आईएमएफ के साथ वो कंडीशंस देखते हैं बिकॉज दे वांट दैट लोन मस्ट बी सिक्योर, ठीक है ना जी। उनको भी ये होता है कि हमने पैसे दिए तो डिफॉल्ट ना कर जाए। सो कीपिंग इन व्यू इसके अंदर जियो, ये आपके ख्याल में ये दोनों चीजें हैं। लेकिन डॉक्टर उस्मान साहब, देयर इज वन थिंग, इज इट अनयूजुअल व्हाट आईएमएफ इज डूइंग टू अस? बिकॉज इससे पहले ये परसेप्शन थी कि लोग ये कहते थे, और एक आम ख्याल भी है कि आईएमएफ के पास जाना कौन सा मसला है। कोई भी मुल्क जब हालात खराब हो जाते हैं तो वो आईएमएफ के पास चला जाता है और आईएमएफ उसको पैसे दे देता है। सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो आपने फुलफिल करनी होती हैं, आप वो कंडीशन फुलफिल करते हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं। तो इस मर्तबा जो आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान चल रहा है, इज इट समथिंग विच द वे द बिजनेस हैज चेंज्ड आईएमएफ का, या फिर you see this something as very unusual happening? I think, Rahman sir, this is a brilliant question, because there are some patterns of their engagement which are usual, but there is something fishy about all of this. The fishy part is that if you look at the calculus of the IMF, its only job is to lend for financial stability. It isn't meant to be a
priest. It isn't meant to be a doctor. It isn't meant to be your boyfriend. It is meant to just lend in emergencies. And it is not doing this right because it is adding things at different times, different stipulations. इसका और काम है क्या इस दुनिया में, मुझे तो नहीं समझ आती. तो अगर ये आगे कर्जा नहीं देते तो ये क्या कर रहे हैं? So this is very unusual. And right now is a very difficult time. I would argue it's a more difficult time than COVID-19 for many countries. For example, for Sri Lanka, for example, Lebanon, Ghana, etc., Peru. There's so many countries that are in difficulty. IMF should rise to the occasion. It didn't rise enough to the occasion in COVID, and it isn't rising to the occasion now because there is something very different about our current environment. It is Right. like in 50 years, you are seeing the first time a serious monetary contraction, that the Fed is compressing the amount of US dollars out there, and it is raising rates, and it has done so in such an abrupt manner that not just countries are facing serious conditions, but in fact their own banks are starting to collapse. शायद आपने सिलिकॉन वैली बैंक का सुना है, सिग्नेचर बैंक, ये वो 3 मुसलसल बड़े बैंक अमेरिका के गिर पड़े हैं और क्रेडिट स्विस वैसे ही तबाह हो गया है, एविंग ऑन द साइड, और अब डॉइचे की शायद बारी आ रही है. So the repercussions are so big, and in this environment, IMF should be much more responsible, much more considerate of the impact. So I accept and recognize the brilliance of the question कि कोई कुछ अजीब और गरीब कुछ दाल में काला है अभी जी है. राइट. अच्छा शुजा साहब, इसमें हाउ डू यू वे इन? हमारे पास देखिए, लेट्स सपोज अभी तो हम कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एंड आई थिंक हम अभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी साथ साथ देखें तो पाकिस्तान डिड नॉट गो फॉर द डेमोक्रेसी समिट, प्लस चाइनीज लोन्स के हवाले से जो है वो कुछ रीस्केड्यूलिंग हुई है. सो व्हाट आर दीज इंडिकेटर्स? क्या पाकिस्तान जो है वो कोई ऑल्टरनेट जो है वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उसको इस वक्त जो है वो देख रहा है, या फिर यू थिंक दिस इज समवेयर गोइंग टू अ बार्गेनिंग टेबल जहां पर हम अपने आप को जो है वो कोई जरा बेहतर प्लेस जो है वो करना चाहते हैं? और क्या पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता है आईएमएफ के अलावा? क्योंकि एक कंसेंसस इस चीज के ऊपर है हमारी अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन, डिप्लोमेटिक लाइन, फाइनेंशियल लाइन, हमारे जो मिलिट्री लाइन, हर तरह की लाइन में जो है वो इस वक्त मुल्क का एक कंसेंसस तो है कि हमें आईएमएफ की जरूरत है. एक तो पहला तो यह कि रजिया को ना गुंडों में फंसने का शौक है. ठीक है, देखिए दो आपके, देखिए जी, आपके दो पोल है. एक आपका चाइना है जिसने आपके कंट्री में इन्वेस्ट भी किया है, चाहे वो अच्छा किया है बुरा किया है वो एक अलग डिबेट है. और दूसरा आपके पास देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिसमें आपके पास आईएमएफ वगैरह है और बायलैटरल जितने भी हैं. अब आप देखें दुनिया के अंदर इस वक्त पोलराइजेशन हुई है आफ्टर रशियन यूक्रेन वॉर, और वो हम भी उसका भुगत रहे हैं. ठीक है, उसके फाइनेंशियल जो क्राइसिस आए हैं, जो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस आए हैं वो तो एक अलग है, एनर्जी क्राइसिस है. लेकिन पाकिस्तान का तो देखें जो इस वक्त प्रॉब्लम है कि आपने जब सी पैक स्टार्ट किया है तो सी पैक के बाद जाहिर है वो वेस्ट की नजरों में भी आप खटक रहे थे. ठीक है, अब जब फॉर एग्जांपल अब ये हुआ है कि के ऊपर ट्रीटेड दिस प्रोजेक्ट, या तो पहले दिन इसको बहुत अच्छे तरीके से नेगोशिएट करते वो एक अलग बात है. तो देखिए इस वक्त आपसे चाइना भी नाराज है जो एक फैक्ट है. इस वक्त क्लोज हो चुका है. ठीक है, उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस नहीं है. सी पैक सेंटर पाइड में एग्जिस्ट कर उससे मिल सकती है, चाइना की तरफ से मिल सकती है, और या स्पेस आपको आईएमएफ की तरफ से मिल सकती है. तो अल्टीमेटली देखें जो जो असल रहमान साहब चीज है वो कंट्रीज या इदारे अपने मुफादात को देखते हैं, वो आपके मुफादात को नहीं देखेंगे. इस वक्त चाइना अपने इंटरेस्ट को देखेगा और वो अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के मुताबिक आपको सिक्योर करने की कोशिश करेगा. अगर आप उसको नहीं उसके इंटरेस्ट को मीट करेंगे तो वो डेफिनेटली आप पे क्यों पैसा लगाएगा. एंड द सेम विद द वेस्टर्न कंट्रीज के दे हैव सर्टन रिजर्वेशन जिसके अंदर जियोपॉलिटिकल भी हो सकती हैं, जिसके अंदर सर्टन इकोनॉमिक चीजें भी हो सकती हैं. तो जो देखें इन शॉर्ट इस वक्त मेरे ख्याल से हमारे पास आईएमएफ के अलावा तो कोई चारा नहीं है. कीपिंग इन व्यू
अवर करंट नीड, जो शॉर्ट टर्म है। देखिए अगेन वो शॉर्ट टर्म है, उसकी रीजन है कि आप देखिए 75 साल में हम 23-24 दफा आईएमएफ के पास जा चुके हैं। तो आईएमएफ के पास आप किस वक्त जाते हैं? जब आप वेंटिलेटर पे होते हैं। तो मैं वैसे वैसे वो यूजुअली बात कह रहा हूँ, सॉरी टू कट यू, वो कहते हैं कि ट्रस्ट की बात हो रही है ना, कि आईएमएफ को हम पे ट्रस्ट नहीं है, तो आईएमएफ के पास 23 दफा जा चुके हैं। तो जिससे हमने 23 दफा पैसे लिया, वो भी जो है वो हम पे जो है वो ट्रस्ट जो है वो नहीं कर रहा। देखिए वो तो बैंक है ना, जी जी। बैंक है, बैंक अपनी लैंडिंग देखेगा। दोनों का हम्म, कसूर है, ये नहीं है जिस तरह मैंने आपको किया। अगर पाकिस्तान, आप एक डॉक्टर के पास 23 दफा जाते हैं सही। 75 साल में, और आप कुछ प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, कुछ आप प्रोग्राम कंप्लीट नहीं करते, तो डॉक्टर का भी तो फॉल्ट है ना, कि डॉक्टर ने आपको बहुत से रेमेडी मैयर लिए और उन रेमेडी मैयर का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आ रहा। ठीक है, अगेन आपको 2-2.5 साल के बाद जाना पड़ता है। और हमारे भी फॉल्ट है, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे भी आपको पता है मोस्टली पॉलिटिकल लोनिंग होती है। जब भी एक गवर्नमेंट आती है, तो हम्म। गवर्नमेंट शुरू में आईएमएफ के पास जाती है, 2-3 साल जब गुजर जाते हैं, उसको होता है कि जी आप चूंकि आगे इलेक्शन ईयर आ रहे हैं, मुझे सब्सिडी देनी है, तो आप उस प्रोग्राम से एग्जिट कर जाते हैं। तो देखिए हमेशा सही। हमारा जो आईएमएफ के साथ रिलेशन रहा है वो बड़ा शॉर्ट टर्म है। पैसा मिल गया है, ओके, ठीक। हमने उसको डॉलर वापस करना है। तो देखिए ये हाँ। आपके लिए इम्पॉसिबल है, कुछ भी हो जाए आप कर ही नहीं सकते। तो हम्म। आपका क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली आईएमएफ के पास जाना अभी भी आपका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। वो अच्छा। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन डेफिनेटली, उसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। प्रोज आपको ये ठीक। मिलेंगे कि ठीक है अगले 2-4-5 माह 6 माह आप डिफॉल्ट से बच जाएंगे, इन्फ्लेशन डेफिनेटली आएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म जो आपको सोचना है, वो आपकी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है इकोनॉमी के अंदर, जो हमने पिछले शायद 30-40 साल के अंदर नहीं किया है, वो जब तक नहीं करेंगे, देखें ये दिन ब दिन अच्छा। बर्डन ट्रिगर होता जाएगा, ठीक। उसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर गवर्नमेंट ने आप देखें, जितना मुशर्रफ तक लोन लिया था, उससे डबल पीपल्स पार्टी ने ले लिया, उससे डबल हम्म। पीएमएलएन ने ले लिया, उससे डबल पीटीआई ने ले लिया। तो ये कब तक चलेगा? ठीक। इंटरेस्ट पेमेंट इस वक्त आप देखें तो आपके बजट की 45% सर इंटरेस्ट पेमेंट हो चुकी है। ठीक है ना जी, जहां आप पहले को 1500 अरब अपने बजट का फाइनेंस कर रहे थे, अब वो 4500 अरब से ऊपर चला गया। हम्म। तो अगले 2-3 साल में तो फिर आपका सारा बजट सर उसी तरफ चला जाएगा। डेवलपमेंट हाँ। बजट पिछले 3-4 साल से 5 साल से हम उसको हमेशा कट लगा रहे हैं, क्योंकि ये डेट सही। फाइनेंसिंग की तरफ। सर अगर हम इस डिस्कशन का स्कोप थोड़ा नेशनल लेवल पे अगर लाएं, तो सर आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर उस्मान साहब, सर, as we know that tax collection has been a major challenge for Pakistani authorities in recent decades. What are the required measures that should be undertaken by the government, and how do we bring our entire business community in the tax net? It is a excellent question, but it is only half of the problem, you know. The हम्म। expenditure side is as big a deal as the revenue side. इस पे शुजात साहब और पाइट के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि ये स्लज कितनी है गवर्नमेंट में, हम जो पैसा इकट्ठा करते भी हैं वो खर्चते कहाँ हैं. And सही। similarly, on the revenue side, you see that what you do raise, you raise from squeezing a few places. The salaryman, you squeeze it from your industry, but you don't get a comprehensive thing. The retail, the agriculture, big sectors of the economy just lay without a formal taxation system. So you have a very distorted system. And at the top, there is a lot of rot. There's rot been there for a long time. And so people feel like, why should I pay when these guys are just going to eat it up or spend it हम्म। on their protocol and this, that? The culture here is toxic from the top, and the person at the bottom simply doesn't earn enough to cover it. So we have a very imbalanced structure of the economy. Remember, I would argue to you that the first step is not to address the revenue stuff, but to address the expenditure side, especially at the provincial level. Ayashi, in the meantime, we are having a very hard time sustaining our fiscal propriety. That is the fundamental thing, to look at the fiscal deficit from both the revenue side and the expenditure side. And I tell you that this is not something that has always been part of South Asian history. The more I have studied the, ये मैंने शुरात साहब पाइड में भी कहा था कि ये मुगल सूबेदारों के जमाने में टैक्स चोरी नहीं हुआ करती थी. बाजोर शमशीर वो खींच खूंच आप उससे टैक्स चोरी करके तो दिखाएं. बाजोर शमशीर होता था. एंड बेसिकली हमारी अवाम जो है वो बिगड़ चुकी है ओवर द पास्ट 75 years, and we have to go into the tough enforcement elements
because there's a lot at stake if we don't. राइट, मगर इसमें थोड़ा सा जरा, अगर मैं शुजात साहब, आई वांट योर ओपिनियन ऑन, दोबारा से मैं जरा उसके ऊपर आता हूँ जो हमारे फॉरेन पॉलिसी भी क्योंकि इससे जुड़ी है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी जो है वो इससे जुड़ी है, इंस्टेबिलिटी जिस तरह से है, पाकिस्तान के पास, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट दिस इशू कि जी कि हमने कोई मुस्तकिल चीजें ठीक करनी है, हमने देखना है कि जो हमने पैसे कहाँ से लेने हैं, कमाने कैसे है, ये रियलाइजेशन अब कहीं ना कहीं पर जो है वो आ रही है। इवन हमारे ऊपर जो टॉप की जो है वो बात है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अब ये है कि भाई चीजों को कम से कम लाइन के ऊपर जो है वो लेकर आए। वी नीड टू सेट द बेसिक्स राइट। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, आपको क्या लगता है, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान आज ये शुरू करता है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डू दीज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिनकी हम बार बार जो है वो बात करते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, हमने 5 ईयर प्लान्स का, ये तो एक बड़ा सोशलिस्ट सा कॉन्सेप्ट है, 5 ईयर प्लान हमने भी किए, लेकिन अभी हर मुल्क कोई ना कोई विजन जो है वो लेकर चल रहा है। किसी का 2050 है, किसी का 2030 है, किसी का 2035 है। तो हमारे एंड के ऊपर जो है वो क्या हो रहा है? ये कोई मसला ये नहीं कि अभी पैदा, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो 1960 से नंबर वन जो बड़ा डिजास्टर है हो रहा है, हमारी ग्रोथ और ग्रोथ के साथ हमारी प्रोडक्टिविटी कर रही है। लेकिन हम एक यूनिक कंट्री हैं कि हमारी इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि जो ग्रोथ के अगर आप ड्राइवर्स देखें वो दो तीन होते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो एक आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा ट्रेंड पिछले 40 साल से स्टेगनेंट है या बल्कि डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी जिस तरह मैंने आपको बताया डिक्लाइन हो रही है। हम एजुकेशन एक्सपैंड कर रहे हैं, वी हैव नाउ मोर देन 240 यूनिवर्सिटीज एंड 2 decades ago enrollment at higher education was just around 0.3 million, is around 2.5 million। ये आपकी सब का सब नंबर्स हैं, इट हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू योर ग्रोथ एजेंडा, ठीक है। अब आप देखें चीज है कि जब तक आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी, आप अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं करेंगे, सो डेफिनेटली देखें इस वक्त आपका 2 क्राइसिस चल रहे हैं। एक आपका एक्सटर्नल क्राइसिस है। एक्सटर्नल क्राइसिस में मैं जस्ट आपको यानी कह लें कि अगर आप देखिएगा तो आपकी एक्सपोर्ट जिसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 2000 का नंबर बताता हूँ, हमारी 10 बिलियन थी 2000 में और 2021 में 25 बिलियन हुई है, यानी हमने 20 साल में उसमें 15 बिलियन ऐड किया। बांग्लादेश 5 बिलियन पे था, वो 52 बिलियन पे गया। वियतनाम के करीब था, को 14 बिलियन पे था, वो 336 बिलियन पे गया। तो देखें जो आपका एक्सटर्नल साइड पे जो इस वक्त डॉलर आपका क्राइसिस है या हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है, उसकी बड़ी रीजन आपकी है कि जहां आपका 100 रुपए के पीछे आपकी 125 रुपए इंपोर्ट हो रही थी 2001 में, अब वो 100 रुपए के पीछे इस देर तक गवर्नमेंट का खड़ा है। अगर हिस्टोरिकली देखें तो जहां आज से 15 साल पहले आपका 1500 अरब टैक्स इकट्ठा हो रहा था, अब आपका 7-8 हजार इकट्ठा हो रहा है। यस, उसके अंदर क्राइसिस है, जिस तरह चौहान साहब ने उसको हाईलाइट किया है कि वो टैक्स आपका देखिए अगेन वही है कि आपके 2-3 टैक्सेस है, आप उन्हीं को इंक्रीज करते जा रहे हैं, आप टैक्स बेस को एनहांस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि उसके अंदर ज्यादा लोग आए, उसको फ्लेक्सिबल करें। और शायद ये जो आपके बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आज आप अगर आप एफबीआर को बंद भी कर दें तो ये आपका 80-90% टैक्स तब भी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई एफबीआर का कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। प्रॉब्लम जो इस वक्त है, जो हमने पाइड के अंदर भी स्टडी की है, वो गवर्नमेंट का साइज है सर। गवर्नमेंट का साइज बहुत ह्यूज बढ़ता जा रहा है और उसके पीछे बहुत सी 2-3 चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 आप देखिएगा तो $5 बिलियन तकरीबन आप इस वक्त भी एलीट को सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है ना जी, उनको बिजली के मद में दे रहे हैं, उनको घरों की मद में दे रहे हैं। एलीट कौन सी एलीट है? सर पाकिस्तान में ये भी एलीट की डेफिनेशन भी जो है वो बड़ा
एग्री करती है। जी, दे कुड बी योर मिनिस्टर्स, दे कुड बी ब्यूरोक्रेट्स, दे अच्छा, कुड बी जज, दे तो कुड बी बेसिकली मैन, ठीक है ना जो जी। आपके सर सिंपल सी चीज है ना, आप देखें आपका एक डीसी 10 कनाल 15 कनाल और इवन 100 कनाल के हाँ अंदर सेक्रेटरीज के घर देखें आप, प्रोटोकॉल देखें, गाड़ियां देखें, तो इस वक्त ये जो हमारी कैलकुलेशन है ये तो सबसे बड़ा है। सेकंड जो ठीक। चीज है वो आप देखें तो हम इसमें डोनर का भी बहुत बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह है कि हम नई एजेंसीज नए इदारे बना रहे हैं, ठीक है। हम कोई रिफॉर्म्स नहीं कर पाए कि फॉर एग्जांपल आपकी देखें इस वक्त कोई तकरीबन इस्लामाबाद के अंदर 130-140 आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। उन रेगुलेटरी हाँ अथॉरिटीज की प्रोग्रेस क्या है? नथिंग। पाइड ने जिस तरह चौहान साहब कह रहे थे कि हमने स्लज पे काम किया है, देखिए गवर्नमेंट का जो हाँ फुटप्रिंट है वो तकरीबन 69-70% है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। ये आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इफेक्ट कर रहा है। जब तक आप अपने रिफॉर्म, सिंपल ये है सर कि आप इकोनॉमी को प्राइवेटाइज अच्छा करें, प्राइवेट सेक्टर को उसको रन करने दें। इवन आपका पीएसडीपी, इस वक्त प्रॉब्लम सर ये है कि सारी गवर्नमेंट पीएसडीपी के पीछे लगी हुई है। आपके आपके जो ब्यूरोक्रेट हैं वो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनको भी प्रोजेक्ट चाहिए। मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी टोक्यो गया था, तो एडीबी के हमारे एक दोस्त हैं, वो कुछ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सेक्रेटरीज को लेके गए हुए थे, और जस्ट मकसद ये था कि इनको इंटरटेन करना है सेक्रेटरीज को, और इनसे एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आपने लेना है। तो ठीक। आप इमेजिन करें वहां पे जो इकोनॉमिस्ट थे अच्छे, वो कुछ 6,000-7,000 येन के रूम में रह रहे थे, और उनको ठहराया गया हुआ था $350 के कमरे में, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ अच्छा ब्यूरोक्रेसी इज रनिंग, ठीक है। जब यानी ठीक, मैं जरा थोड़ा सा जरा टाइम कम है, जरा मैं चाह रहा हूँ जरा फाइनल कमेंट्स जो है वो इस चीज के ऊपर ले लूं। उस्मान साहब देखिए, अब हमारा एक मॉडल जो है वो यहाँ पर जो है वो बन चुका है, जो कि बड़ा पेट्रियार्कल सब कॉन्टिनेंट से वो अब किसी ने उस दिन बात की, तो ये एग्जांपल है। इट इज रॉन्ग, आप इससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये और आगे नीचे 6 बंदे जो है वो खर्चने वाले हैं। तो पाकिस्तान में वफाक जो है वो को थोड़ा बहुत कमाता है, कहीं से मांग मूंग के ले आता है, कहीं से जो है वो कमा लेते हैं, और बाकी जो है वो सूबे जो है वो इसको सिर्फ खर्च कर रहे हैं। अच्छा, अब ये चीज जो है वो अब हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो अब वो भी स्वेली कॉम्प्रोमाइज होंगे। वी हैव सीन एक पेट्रोल सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट कहती है देनी है, तो आईएमएफ कहता है कि नो, व्हाई आर यू डूइंग दिस, और हमारे इस पर तहफुजात हैं। सो ये जो डिसीजन मेकिंग है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, हम एक विजन लेना चाहते हैं। हाउ डू यू सी दिस शेपिंग आउट? फ्यूचर जो है वो आप जो है वो क्या देख रहे हैं हमारी, स्पेसिफिकली मैं हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनका, उनकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का? जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है रहमान साहब। मैं पूरा इत्तेफाक करूंगा शुजात साहब से that it's the size of government that is at the root of the problem, and we have only one path forward, but there are two ways to get there. One way is the violent path. You default, the supply of oil stops, we cannot get anywhere, and it's a very disastrous situation. The people rise up, और फिर आपका राजा पक्सा वाला हाल हो जाएगा, और फिर then you will start a new system which will be a better one. या दूसरा तरीका है कि लोग अभी से ही इत्तेफाक करें, इत्तेहादी अंदाज से ये इस निज़ाम को ठीक करें, विफाक पे भी और सूबाई सतह पे भी। और जो आपकी मिसाल है, for government, that is true for households, that is true for society as a whole. You will find productive people in our society who have a brother who is in the Gulf, and so they don't work while they live in, let's say, Mansehra or in Gujarat. This is the sort of mindset that isn't sustainable. To be a successful society in the 21st century, everyone has to put their best foot forward, because the competition isn't just against one another, not against Vietnam and Bangladesh. The competition now is with Chat GPT. आपकी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के साथ होने क्या लगा अभी, अल्लाह माफ करे, once people realize that everything can be done so सर्विस easily. सेक्टर के साथ सही। Absolutely. So it's the white collar person that is in bigger trouble. Even your productive people are going to face difficulties. So we all need to get our act together. Sadly, I think that it might be the former path, the more violent, the Rajapaksa path, that will get us there. But I really, really would want, because I have met many decent people in Pakistan, to have the more mature way of doing things. The quiet revolution, just Quebec में Canada में हुई थी over the 20th century. A quiet revolution के हम
शराफत से ही चीजें ठीक कर लें। इस अच्छा। बात को मद्देनजर रखते हुए कि हमारी अक्सरियत जो है वो तो 30 साल की उम्र से कम है, हम्म। तो इनके लिए जो हमने दुरुस्त माशरा बनाना है वो हम पे दरकार है अभी मेहनत करना। ठीक। सर, शुदा साहब, योर फाइनल कमेंट्स, आगे का रास्ता। पर मुश्किल है। देखें, एटीट्यूड मैटर करते हैं। जो बदकिस्मती से, जिस तरह आपने कहा कि जिस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हम बात के, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किसने, सोसाइटी का तो चले एक कलेक्टिव प्रेशर आता है रिफॉर्म्स के ऊपर, करनी गवर्नमेंट में होती है। अनफॉर्चुनेटली आप देखें, जिस तरह हम जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, डेट से हम एक इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर फंस गए हुए हैं। हम्म। ठीक है, शायद ये जो इंटरनल अनसर्टिनिटी है, ये जब तक आप इस अनसर्टिनिटी से नहीं निकलेंगे, मेरे ख्याल से एक कोई सर। स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं आएगी। वो स्ट्रांग गवर्नमेंट जब तक नहीं होएगी, आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जो इस वक्त एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, आपको पता है, को करेंगे। तो जो भी तक आपकी, और फिर शायद मेरे ख्याल से पाइड ने अभी एक रीसेंट डॉक्यूमेंट भी लिखा है कि शायद आपको एक पॉलिटिकल कंसेंसस फ्रेमवर्क चाहिए हाँ। और एक आपको इकोनॉमी पे चार्टर चाहिए। देखें, इंडिया के अंदर अगर आप देखें हम, उसके लिए आप जो बात कर रहे हैं वो रीसेट की है, लेकिन डॉक्टर उस्मान साहब ने जो बात की वो हाँ हार्ड हाँ, रीसेट वाली बात है। देखिए देखिए, हार्ड तभी आप करेंगे कि सबसे पहले आपके हम्म। आपका हाउस सीधा होगा। जब तक देखे ना, इस सिचुएशन में जो इस वक्त आप जिस पॉलिटिकल साइकिल से गुजर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप कोई बहुत हार्ड डिसीजन ले पाए। इलेक्शन आगे अच्छा। आ रहा है, गवर्नमेंट 5 रुपए भी पेट्रोल पे बढ़ाने से पहले सोचेगी। ठीक है, और हम्म। इन्फ्लेशन आपके सामने है। हार्ड डिसीजन आप लेंगे, लेकिन हार्ड डिसीजन से पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको चाहिए। यस, फिर आपको हार्ड डिसीजन लेने हैं, और वो बड़े और वो माइनर डिसीजन से इस वक्त काम नहीं, जरूरत है। यानी आपको इस वक्त आप कहें ना कि जी आईएमएफ के पास चले जाएं, फिर पैसे आ जाएंगे जी, आपको 6 माह के लिए बचा राइट। देंगे। राइट। आपको बड़ा सर क्लियरली फिजिकल साइड पे टैक्स बेस को राइज करना है, और गवर्नमेंट हम्म। साइज को आपने काम करना है, ठीक। बिजनेस को आपने ईज करना है। देखिए, इकोनॉमी को ओपन करें। पाकिस्तान के अंदर एफडीआई ना होने के बराबर आ रही है। हमारी इकोनॉमी विद पैसेज ऑफ टाइम एक क्लोज इकोनॉमी हो गई है। और हम्म। क्लोज इकोनॉमी में जो हमें इस वक्त बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो ये है कि हम एक इम्पोर्टेड इकोनॉमी बन गए हैं, क्योंकि आपकी जो एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो है वो हार्डली 9-10% पे है पिछले 40 साल से, वो बढ़ सही। नहीं रही है। सो अल्टीमेटली आपकी जब ग्रोथ होती है, फॉर एग्जांपल कहीं से पैसा आता है, ग्रोथ होती है, तो आपकी हीटेड, हम उसको कहते हैं हीट हो गई है। हीट की रीजन यह है कि आपकी इंपोर्ट बढ़ जाती है। तो इंपोर्ट बढ़ती है, और अगेन आपको क्या करना पड़ता है कि वो जिसको कहते हैं उस ग्रोथ को कर्टेल करना पड़ता है। पटेल करना तो पड़ता शायद पॉलिसी साइड पे जो इस वक्त जो मुझे, जहां पे मैं आपके बड़ा कंफ्यूज हूँ, अनसर्टन हूँ, कि है। शायद सही। हमारी अपनी जो कैपेबिलिटी थी इदारों की, वो बड़ी बुरी तरह डिफ्यूज हुई है कि आप एक प्रॉपर पॉलिसी ले सके। वी हैव ग्रोथ फ्रेमवर्क, विजन, लेकिन इन सब का आप देखें, पॉलिसीज आर डायनामिक सही। कंसल्टेटिव प्रोसेस, बिल्कुल। शायद वो हमारे इंटायरली मिसिंग है। इस वक्त आपकी पॉलिसी ड्राइव कौन कर हाँ। रहा है? वो वर्ल्ड बैंक कर रहा होगा, वो डिफर्ड कर रहा होगा, वो एडीबी कर रहा होगा। तो आप इस वक्त जो आपके आपकी जो इस वक्त जो डायमेंशन है, वो विदाउट एनी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। ठीक। तो राइट। आपको आपको एक कम्प्रिहेंसिव मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क चाहिए, जो आपकी लोकल नीड के मुताबिक हो, और लोकल नीड के साथ आपके इवन डोनर्स हम्म। का, ये बड़ी एक बदकिस्मती है कि एक आपका मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होता है और एक डोनर का जी अपना बिल्कुल। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होता है। और ये कभी भी कहीं पे रिकनसाइल आज तक हिस्टोरिकली पाकिस्तान में नहीं हुई। वर्ल्ड बैंक आप देखें, वो अपनी एक इंटरवेंशन कर रहा होता है, आपकी प्लानिंग एक अपनी कर रहा होता है, और हम्म। अनफॉर्चुनेटली जो पीएसडीपी है, उसको आपको बड़ा इफेक्टिवली ठीक। मैनेज करना है। इस वक्त जो पीएसडीपी है, दैट इज अ राइट। बुलशिट। Uh, Sir, now we proceed towards the conclusion. Indeed, as anticipated earlier, we had a very fruitful discussion with our eminent speakers. I, on behalf of the Center for Law and Security, take this opportunity to thank our guest speakers, Dr. Usman Chauhan Saab and Dr. Shujat Farooq Saab. We hope to collaborate with you for our future events. Now I would request Mr. डेफिनेटली Iman सर। Azhar Saab to give brief vote of thanks.
Sir, thank you so much. Lovely talking to you, Shujat साहब, उस्मान साहब. Always a pleasure having you. हम जैसे लोगों को और देखने वाले भी जो है, I think we get to learn a lot and to basically हमारा फोकस ये है कि चीज़ों की थोड़ी समझ आए कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है. And you've been very helpful today. So thank you so much. Thank you. Thank you. थैंक यू सर, Thank you Thank so you. much. Allah Hafiz. थैंक यू Allah अल्लाह Hafiz. हाफ़िज़.